Hello friends, welcome you all, and today we are going to discuss about the second part of the sensory system. Now in the previous part in the of the sensory system, उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन की थी अबाउट द सेंसरी फिजियोलॉजी, और उसमें से दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी. वन इज़ अबाउट द सेंसेशन एंड सेकंड इज़ अ परसेप्शन. सो सेंसेशन दैट मीन्स recognition of the stimulus at conscious level, that is called the sensation. Perception means further interpretation and comprehension of the sensation, that is the perception. So basically sensation means recognition of the stimulus and the perception is recognition of the sensation, that is called the perception. तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थे इन द सेंसरी फिजियोलॉजी. उसके बाद किया था हमने अबाउट द जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशन. ओके, जनरल में पेन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, दिस ऑल आर द जनरल सेंसेशन. इन द स्पेशल सेंसेशन देर आर 5: विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड इक्विलिब्रियम. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद किया था अबाउट द सेंसरी कोडिंग. Sensory coding is depend on the four things: modality, that is the type of the stimulus; location, that is the site of the receptor; intensity, that is the strength or amplitude of the stimulus; and duration, how long stimulus remain with the receptor. उसके अलावा हमने दो important statement दिए थे. One is about the receptor potential is directly proportional to the strength of the stimulus. And the second statement is about the number of the action potential is directly proportional to the amplitude of the receptor potential. तो ये सारी चीज़ें हमने किया था, डिस्कस की थी इन द सेंसरी फिजियोलॉजी पार्ट 1. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 2 of the sensory system, and this is the very important and fundamental lecture to understand the sensory tract. So we will discuss the important ascending tract, that is a sensory one. Ascending because they runs ascend toward the brain, because in the sensory physiology what is the direction is from the periphery to center. Okay, so information is coming to the spinal cord and this information is reached to the respective part of the cortex through the spinal cord. Okay, so in the spinal cord they runs upward toward the brain, and that's why all the sensory tracts is called the ascending tract. For example, motor, it is a descending. So that we will discuss later on. तो आज जो हम करेंगे इन द पार्ट 2, दैट इज अवर मेन फोकस रहेगा ऑन द इम्पोर्टेंट ascending tract जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. So outline of the sessions start with the basics of the sensory tracts. उसके बाद दो इंपॉर्टेंट सिस्टम करेंगे. वन इज अबाउट द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम एंड द सेकंड इज अ एंटेरोलेटरल सिस्टम. ये क्या है वो डिटेल में करेंगे आगे हम. एंड ऑल्सो वी डिस्कस द सेंसरी कॉर्टेक्स. ओके, सो बेसिकली आवर मेन फोकस रहेगा इन द टुडे सेशन इज ऑन द इम्पोर्टेंट ascending or important. Now look at this image. This is the vertebra. Okay, this is the spinal cord. Okay, this is the anterior side, this is the posterior side. Okay, this is the dorsal root and this is the ventral root. All the sensory information, जो भी information body से periphery से आएगी वो enter होगी in the spinal cord through the dorsal root, और all the motor information जो बाहर निकलेगी from the स्पाइनल कॉर्ड दैट इज थ्रू द वेंट्रल रूट. ओके, तो उसी बेसिस पे एक हमारा रूल्स था, लॉ था, दैट इज अ बेल मैगेंडी लॉ. ओके, डोर्सल रूट सेंसरी, दैट इज DS, डोर्सल रूट सेंसरी, वेंट्रल रूट इज अ मोटर, DSVM. ओके, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द बेल मैगेंडी लॉ. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड we will show the schematic diagram of the cross section of the spinal cord. तो उसमें और भी आपको अच्छा आइडिया आएगा about the tracks.
बोथ द ट्रैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, बट उसमें सारे असेंडिंग और सारे डिसेंडिंग नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. Now look at this, the cross section of the spinal cord. Okay, these are the white matter, these are the gray matter, this is the central canal, this is anterior side, this is the posterior side. Okay, dorsal horn is for sensory, ventral horn is motor, and the lateral horn is a autonomic. Always remember. Okay, one more thing, the important concept that you have to remember, there are two matters are there, one is a gray matter and the second is a white matter. Always remember, all the tracks, whether it is a ascending or descending, they all run upward or downward in the spinal cord only in the white matter. So all the tracks are present or run only in the white matter, and that is the main function of the white matter to carrying the information. Okay, so always remember, gray matter में कोई भी track नहीं होगा, all the tracks are in the white matter. Look at this, these are the different tracks. ये कौन से track होंगे, that we will discuss in the subsequent slide in the respective track. Okay, so all the tracks are in the white matter only. ग्रे मैटर का काम है सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको प्रोसेस करना. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट सेंसरी ट्रैक. तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वन इज अ डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. डोर्सल कॉलम medial lemniscal system. Why it is called the dorsal column medial lemniscal system? Because it runs upward in the spinal cord in the dorsal column, of the spinal cord. Okay, that's why it is called the dorsal column, and it is also passed through the medial lemniscus. Okay, and that's why it is collectively known as a dorsal column medial lemniscal system. इसमें दो ट्रैक रहेंगे, one is track of the gall and the second is a track of the burdock. This track of the gall is also called the fasciculus gracilis, which carry the sensation from the lower limbs, and the tracks of the burdock, it will carry the sensation from the upper limb. Okay, तो sensation common रहेंगे, but कौन से part से ये carry करेंगे उसके हिसाब से is further divided in the two different tracks. Okay, so basically in the dorsal column medial lemniscus system, that is a DSML, there are two important tracks, tracks of the gall and tracks of the burdock. Second system हमारी important है in the sensory, that is a anterolateral system. Now why it is called the anterolateral? Because उसके fiber they runs in the anterior and lateral column of the spinal cord. Okay, this is also called the ventrolateral. Okay, anterolateral या ventrolateral. Okay, and that's why it is called the anterolateral system. तो उसमें भी दो ट्रैक हैं, one is anterior spinothalamic and the second is a lateral spinothalamic. Now always remember, in the ascending track, information is goes from the periphery to center. This is the direction of the sensory system. Okay, for example आपको बस में जाना है, from for example वडनगर is a periphery, अहमदाबाद is a center, so वडनगर to अहमदाबाद. Okay, so ये हो गया हमारा ascending track. अहमदाबाद to वडनगर, that is a descending track. Okay, so sometime by the name of the track you can recognize whether it is ascending or descending. ठीक है, anterior spinothalamic because it is a run in the anterior column, this runs in the lateral column, start with the spinal cord, end in the sensory thalamus, and last at the sensory cortex. Okay, so though there are two important system present in जो हम डिस्कस करेंगे, dorsal column medial lemniscal system, the second is a anterolateral system, and both the system are very very important.
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द ट्रैक्स, कोई भी ट्रैक्स आप करो तो आपको करना है फ्रॉम द, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, ओके, देन उसका फर्दर प्रोग्रेस, मतलब वो कैसे पास हुआ, एंड फाइनली टर्मिनेशन एंड फंक्शन एंड रिलेटेड अप्लाइड एस्पेक्ट। ये 4 और 5 हेडिंग में आप कोई भी ट्रैक कर सकते हो, वेदर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके। So basically these all are the sensory tracts. So the main function of the sensory tracts is nothing but is a group of the fibers which carry the information, whether it is a sensory or motor. Sensory है तो sensory tract बोलेंगे, motor है तो motor tract बोलेंगे. Now the main function of this tract are carrying the sensation, okay. तो कौन सा tract कौन सा sensation ले जाएगा वो आपको याद करना है, and सो वैसे तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं एंड दे कैरी द डिफरेंट सेंसेशन, ओके, बट जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो आपको याद रखनी है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम एंड एंटेरोलेटरल सिस्टम. विच सेंसेशन इज कैरिड बाय द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम एंड विच सेंसेशन इज कैरिड बाय द एंटेरोलेटरल सिस्टम, दैट यू हैव टू रिमेंबर सेपरेटली. सो फाइन टच, tactile localization, tactile discrimination, pressure sense, vibration sense, stereognosis, conscious proprioception, these all the sensation are carried by the dorsal column medial lemniscal system. Fasciculus, उसमें 2 पार्ट थे, fasciculus gracilis will carry all this sensation from the lower limb and fasciculus cuneatus will carry all this sensation from the upper limb along with the trunk, okay. Now the all the general sensation of the head and neck is carried by the trigeminal system और वो हम पार्ट 3 में करेंगे, okay. In anterolateral system we have again 2 tracts. One is anterior spinothalamic and here is a lateral spinothalamic. This anterior spinothalamic will carry the crude touch. So crude touch is carried by the anterior spinothalamic. Pain and temperature is carried by the lateral spinothalamic tract. Always remember. Okay. तो यहाँ बॉडी का सारा पार्ट का क्रूड जो टच होगा इट कैरिड बाय द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक. पेन एंड टेम्परेचर इज कैरिड बाय द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ओके. नाउ इन दिस स्लाइड देयर आर 2 न्यू टर्मिनोलॉजी आर देयर. वन इज अ स्टीरियोग्नोसिस एंड द सेकंड इज अ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ओके. सो व्हाट इज द स्टीरियोग्नोसिस? Stereognosis means recognition of the familiar object with close eye. For example, आपको मैंने बोला कि भाई आपकी आंखें बंद कर दो और आपके हाथ में मैंने इरेजर दे दिया, then you will immediately recognize कि this is the eraser, this is the key, this is the stone, okay, this is the match box, okay. तो आपकी आंखें बंद थी फिर भी आपने उस ऑब्जेक्ट को आपने रिकॉग्नाइज किया, ओके. तो उसमें टच सेंस भी आ जाती है, प्रेशर भी आ जाती है, ओके. सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर देन वन सेंस एंड दैट्स वाई दिस सेंस ऑफ द स्टीरियोग्नोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक सेंस. ऑलवेज रिमेंबर, sense of the stereognosis is also called the synthetic sense because it is a combination of the more than one sense, okay. So basically what is the stereognosis? Stereognosis means a recognition of the familiar object. Here the condition is a familiar object. आपने जिंदगी में कभी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं और वो मैंने आपको आंखें बंद करके हाथ में दे दिया तो यू विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट, ओके. तो इट मस्ट बी फेमिलियर, मतलब आपको पहले उसके बारे में देखा है, सुना है, उसको फील किया है तो ही आपको समझ में आएगा, ओके. सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फेमिलियर ऑब्जेक्ट विथ क्लोज आई, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोग्नोसिस. नाउ द सेकंड टर्मिनोलॉजी कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन. प्रोप्रियोसेप्शन आपको पता है, joint position and joint movement, but here the terminology is something different, that is the conscious proprioception, okay. Conscious proprioception means you are aware about your joint position
and joint body. For example, now I am sitting, okay, so I know what is the position of my elbow, what is the position of my wrist, what is the position of my knee joint, okay. So I am aware about that joint position and joint movement. So that is called the conscious proprioception. एक दूसरा उसका काउंटर पार्ट आएगा unconscious proprioception, that is also called the unconscious kinesthetic sensation. This proprioception is also called the kinesthetic sensation, okay. Kinesia means movement, kinesia means movement, okay. So that we will discuss, वो जब आएगा तब हम उसको डिफाइन करेंगे. So basically all this general sensation, these are the sensation, list of the sensation carried by the dorsal column medial lemniscal system, and these are the list of the sensation carried by the anterolateral system. याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट यू टू रिमेंबर द क्रूड टच इज बाय द एंटेरियर स्पाइनोथेल्मिक, पेन एंड टेम्परेचर लेटरल स्पाइनोथेल्मिक, ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस करेंगे, ओके. रिमेनिंग ऑल द सेंसेशन आर कैरिड बाय द डोर्सल कॉलम medial lemniscal system. So it's very easy to remember, and many times in the viva, in examination, in short answer question, MCQ, okay, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Now one more important modalities of the sense is a each sensation, tickle, okay, tickle is a pleasant, and sexual sensation. These all the three sensation which is not mentioned above is carried by the anterolateral system, okay. Now in sometime MCQ थोड़ा बहुत आपको confusion हो सकता है. कैसे? Look at this scenario. For example, if the question is asked like each sensation is carried by the which of the following track, आपके पास ऑप्शन है dorsal column medial lemniscal system, anterolateral system and two more sensory tracks, other tracks, okay. चार ऑप्शन हो गए तो आपका आंसर आएगा anterolateral system. There is no confusion, yes. But if the examiner is a smart, और वो थोड़ा आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है, ओके, एंड पेपर इज टफ, देन यही क्वेश्चन दूसरे वे में भी आ सकता है. ईच सेंसेशन इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक. उसमें उसने ऑप्शन दिए हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्विनिटस, एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक एंड लेटरल स्पाइनोथेल्मिक. अब कंफ्यूजन हो गया कि सर ने तो बोला था कि इट कैरिड बाय द एंटेरोलेटरल सिस्टम, बट anterior is also part of the anterolateral system, lateral spinothalamic is also part of the anterolateral system. तो दो में से कौन सा आंसर लिखना है? तो आंसर आएगा the specific is a lateral spinothalamic tract, okay. How it correlate? तो उसके क्रॉस रेफरेंस भी मैंने अगले स्लाइड में दिए, that you can refer later on, okay. So in MCQ, if the options is the lateral spinothalamic tract is there, then your answer would be the lateral spinothalamic for the each tickle and sexual sensation. But if lateral spinothalamic नहीं दिया है और collectively anterolateral system दिया है तो फिर कोई confusion ही नहीं है, okay. So please remember कैसे MCQ पूछा जाता है उस हिसाब से आपको आंसर करना है और कौन से ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है. This is the what MCQ is. And these are the cross references how each and tickle is related with the pain and sensation, okay, and that's why it is carried by the specifically अगर बोला जाए तो it is a lateral spinothalamic tract. अगर collectively बोलना है in general term तो फिर it is carried by the anterolateral system. तो अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पहले तो एंटेरोलेटरल सिस्टम ही बताना है, फिर भी उसमें अगर एग्जामिनर पूछे कि कौन सा ट्रैक तो फिर बोलना है कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. कैसे? तो ये बाय दिस टू क्रॉस रेफरेंसेस. सो नाउ कमिंग टू द पाथवे. तो पाथवे में करेंगे हम ओरिजिन, उसका फर्दर प्रोग्रेस एंड टर्मिनेशन. फंक्शन तो हो गए, वो कौन से सेंसेशन, दैट इज अ फंक्शन, एंड एप्लाइड एस्पेक्ट जो करेंगे दैट इज इन द थर्ड पार्ट, ओके.
नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेंसरी ट्रैक, जो कोई भी हम सेंसरी ट्रैक करेंगे तो वो पूरा पाथवे जो होगा राइट फ्रॉम दी ओरिजिन टू टर्मिनेशन, उसको हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ओके, और जो अलग अलग सेगमेंट जो होंगे उसको बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड न्यूरॉन्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमको वडनगर से अहमदाबाद जाना है तो फर्स्ट स्टेशन विल बी द विसनगर, सो वडनगर टू विसनगर दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। विसनगर टू गांधीनगर दैट इज अ सेकंड ऑर्डर, गांधीनगर टू अहमदाबाद दैट इज अ थर्ड ऑर्डर। ओके, सो इन द मोस्ट ऑफ द सेंसरी ट्रैक देर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ द न्यूरॉन्स, मतलब 3 सेगमेंट इन द पाथवे। ओके, मोटर सिस्टम में अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन ऐसे रहेंगे, बट इन द सेंसरी सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। सो मोस्ट ऑफ द ट्रैक हैविंग द 3 orders of the neurons in their pathway, but yes, exception is always there. There are 5 orders neuron in the auditory pathway, that you have to remember. Okay, there are 5 orders of the neurons in the auditory pathway. Okay, at the same time only 2 orders of the neurons in the olfactory pathway. Okay, otherwise in the most of the general sensation in vision, टेस्ट, ओके, ये जो सारे सेंसेशन है, बाकी के सारे सेंसेशन, उसका जो पाथवे रहेगा उसमें मोस्टली देर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ द न्यूरॉन्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द होल पाथवे फॉर द बोथ द सिस्टम बाय कंपेयरिंग एंड बाय कॉन्ट्रास्टिंग। तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा एंड यू विल एबल टू डिफ्रेंशिएट द pathway of the both the system. Okay, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर द डोर्सल कॉलम, ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट तो हमारा रिसेप्टर रहेगा इन द बोथ द सिस्टम, सो रिसेप्टर टू मेडुला, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके फाइबर, डोर्सल कॉलम के फाइबर स्टार्ट होंगे फ्रॉम द रिसेप्टर एंड एंड होंगे इन द मेडुला। हियर स्टार्ट विद द रिसेप्टर एंड इन द डोर्सल हॉर्न, एंड दिस डोर्सल हॉर्न इन द स्पाइनल कॉर्ड, दिस मेडुला इन द ब्रेन। ओके, तो वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन किस में लंबा रहेगा, इन द डोर्सल कॉलम एज कंपेयर टू द एंटेरोलेटरल सिस्टम। देन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, जहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हुआ था वहाँ से स्टार्ट होगा, सो फ्रॉम द मेडुला टू थैलेमस। ओके, एंड इन एंटेरोलेटरल सिस्टम डोर्सल हॉर्न टू थैलेमस। Okay, so this is for the second order neurons for the both the system. Third order neuron, thalamus to primary sensory cortex, that is S1. One is the primary, S for the sensory. So primary sensory cortex, वहाँ पे अल्टीमेटली फाइबर, ये सारे फाइबर वहाँ जाके टर्मिनेट होंगे। Here is also thalamus to S1. तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन बोथ द सिस्टम। ओके, एंड दैट यू टू रिमेंबर। नाउ अल्टीमेटली दे all the sensory information is originated from the peripheral part and they terminated in the brain, in the cortex. Okay, now this all the tracks, most of the tracks, whether it is the ascending or descending, जब वो ascend करते हैं या वो descend करते हैं, okay, they cross at the one level, they cross either in the brain or in the spinal cord, कहीं ना कहीं एक जगह पे most of the tracks are the cross, okay, and most of the tracks are the cross whether it's the sensory or motor, and that's why the representation of the cerebral cortex is always contralateral. It is always contralateral. That means opposite side of the body. For example, if we stimulate the right sensory cortex, okay, so it will give the sensation on the left half of the body. Okay, so that means right cerebral cortex control the function of the left half of the body and the left hemisphere control the function of the right side of the body. Okay, so for the cerebral cortex the configuration or representation is a contralateral, for the cerebellum is a ipsilateral,
मतलब राइट साइड ऑफ द सेरेबेलम, राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेबेलम, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा, इट विल कंट्रोल द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फंक्शन मतलब दोनों आ गए, सेंसरी एंड मोटर। वाई इट इज कंट्रोलिंग द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब कॉन्ट्रालेटरल क्यों है? बिकॉज द क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर आइदर एट द लेवल ऑफ द ब्रेन और एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल डोर्सल कॉलम के ये, चलो एक तरफ से मतलब राइट साइड से स्टार्ट हुआ फाइबर्स, रिसेप्टर टू मेडुला पहुंचा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला टू थैलेमस, बट दे आर दिस फाइबर ऑफ द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम क्रॉस एट द लेवल ऑफ द मेडुला। तो मेडुला से वो क्रॉस हो गए, अगर राइट साइड के फाइबर है तो वो लेफ्ट में चले जाएंगे, फिर वो एसेंड करेंगे ऊपर एंड दे टर्मिनेट इन द थैलेमस। ओके, सो दिस फाइबर विल, if this fiber is coming from the right side of the body, then it will terminate it on the left thalamus, and from the left thalamus to left sensory cortex. Okay, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? राइट हाफ ऑफ द बॉडी, टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, हियर इज ऑल्सो रिसेप्टर टू द डोर्सल हॉर्न टू थैलेमस, बट इसके जो फाइबर है एंटेरोलेटरल सिस्टम के जो फाइबर है दे क्रॉस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जैसे डोर्सल हॉर्न में एंटर होंगे, जिस सेगमेंट में वो एंटर होंगे, वेदर इज अ थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और सर्वाइकल, कोई जो सेगमेंट में एंटर होंगे उसी सेगमेंट में वो क्रॉस होके फिर दे रन्स अपवर्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो वो क्रॉस हो गए मतलब ऑपोजिट चले गए। ओके, तो एंटेरोलेटरल सिस्टम के फाइबर जो हैं वो क्रॉस होंगे एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड डोर्सल कॉलम ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम के जो फाइबर हैं दे क्रॉस एट द लेवल ऑफ द मेडुला। तो दोनों क्रॉस हो रहे हैं, वन इज एट द लेवल ऑफ द ब्रेन, सेकंड एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो अल्टीमेटली इसके फाइबर भी ऑपोजिट थैलेमस में टर्मिनेट होंगे और फिर वहाँ से सेम कॉर्टेक्स में टर्मिनेट होंगे। मतलब अगर ये लेफ्ट राइट फाइबर हैं तो राइट से ये लेफ्ट में चला गया इन द स्पाइनल कॉर्ड, विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज दे क्रॉस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहाँ से एसेंड करेगा इन द लेफ्ट एंटीरियर एंड लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लेफ्ट थैलेमस में टर्मिनेट होंगे, एंड फ्रॉम द लेफ्ट थैलेमस टू द इट विल टर्मिनेट इन द लेफ्ट सेंसरी cortex, that is the primary sensory cortex. Okay, so that you have to remember. So in the cerebral cortex it will control the contralateral function of the body, and for the cerebellum is a ipsilateral. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। Now look at this. Look at this diagram. अभी तक जो हमने दो सिस्टम बात की ना अबाउट द सेंसरी सिस्टम ट्रैक, वन इज अबाउट द डोर्सल कॉलम एंड सेकंड इज अबाउट द एंटेरोलेटरल सिस्टम। तो दोनों ट्रैक हमने यहाँ पे डिपिक्टेड किए हैं, और आपको इमेज से ये बताना है कि कौन सा इमेज में, फॉर एग्जांपल ये दिस इमेज शो द विच ट्रैक, डोर्सल कॉलम और एंटेरोलेटरल। ओके, so here the fiber is coming from the lower limb, fiber coming from the upper limb. Okay, stimulus, इधर से हम उसको टच कर रहे हैं तो इट इज द टच। ओके, तो देखो यहाँ से फाइबर जा रहे हैं, दिस आर द बोथ आर द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, दिस इज द थैलेमस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ से एंटर हुआ, डोर्सल रूट से एंट्री हुई इन द स्पाइनल कॉर्ड, दे रन्स in the dorsal column of the spinal cord, runs upward. okay, और यहाँ जाके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हुए, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर जैसे मेडुला में पहुँचा वो फिर क्रॉस होंगे फाइबर, ओके, एंड रन्स इन द ऑपोजिट साइड एंड टर्मिनेट ऑन द ऑपोजिट थैलेमस। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ओके, एंड फ्रॉम द थैलेमस टू द रिस्पेक्टिव सेंसरी कॉर्टेक्स, तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, तो ये कौन सा ट्रैक हुआ, टच का स्टिमुलस है, देयर इज वन क्लू, वन इज कमिंग फ्रॉम द अपर लिम्ब, सेकंड इज कमिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस क्यूनिटस, दिस इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलस,
डोर्सल कॉलम में अपवर्ड हो रहे हैं, एसेंड कर रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं एट द लेवल ऑफ द मेडुला. ओके, सो दिस ऑल आर द क्लू फॉर द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. सो दिस इज द, तो ये हो गया अबाउट द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. अब लुक एट दिस इमेज. इसमें जो है दैट इज फाइबर इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, यहाँ पे स्टिमुलस इज अ पेनफुल है. ओके, तो ये पेन का पाथवे दिया हुआ है. देखो, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो तो डोर्सल रूट से ही एंटर करेगी इन द स्पाइनल कॉर्ड. बट जैसे वो एंटर करेगी यहाँ पे दे रन्स इन द सेम साइड, बट हियर दे क्रॉस इन द सेम सेगमेंट. ओके, जैसे एंटर हुआ वहीं पे वो क्रॉस होके फिर लेटरल कॉलम में एसेंड करना चालू कर दिया. ओके, तो लेटरल कॉलम में एसेंड कर रहे हैं. दे रन्स अपवर्ड थ्रू द मेडुला एंड दे टर्मिनेट ऑन द ऑपोजिट थैलेमस. मतलब ये राइट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द मिड लाइन, दिस इज द मिड लाइन. ओके, एंड देन तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर दिस ट्रैक. दिस इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर दिस ट्रैक एंड दिस इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर दिस ट्रैक. ओके, तो ऐसा कौन सा ट्रैक है कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही क्रॉस हो जाते हैं. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल हॉर्न तक ही है. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम द डोर्सल हॉर्न टू द मेडुला है, मतलब टू द थैलेमस. ओके, तो ये ट्रैक हो गया आपका एंटेरोलेटरल सिस्टम. ओके, सो विदाउट लेबलिंग एनी, सो बाय डायग्राम यू कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज विच ट्रैक इज देयर. ओके, सो दिस इज कंप्लीट डायग्राम. तो ये देखो डोर्सल कॉलम में एसेंड कर रहा है, फिर इट फॉर्म थ्रू द मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, इसलिए उसको बोलते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. यहाँ पे एंटीरियर एंड लेटरल कॉलम में रन अपवर्ड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ एंटेरोलेटरल सिस्टम. ओके, तो ये हो गया आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम एंड दिस इज द एंटेरोलेटरल सिस्टम. ओके, कौन सा ट्रैक कौन सा सेंसेशन ले जाएगा याद है ना. ऑलवेज रिमेंबर, anterior spinothalamic crude touch, pain and temperature. Lateral spinothalamic, remaining all the sensation by the dorsal column medial lemniscal system. So whenever in examination अगर कोई ट्रैक पूछा जाए तो वो डायरेक्ट ट्रैक के नाम से भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल फेसिकुलस ग्रेसिलिस, किन्यूटस, ट्रैक ऑफ द गोल, ट्रैक ऑफ द बर्ड आर्च, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटेरोलेटरल सिस्टम, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम. और समटाइम द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द बेस्ड ऑन द सेंसेशन. फॉर एग्जांपल पाथवे फॉर द टच सेंसेशन, तो फिर आपको डोर्सल कॉलम ही करना है. पाथवे फॉर द पेन एंड टेम्परेचर, तो फिर आपको LSC करना है, मतलब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक करना है. पाथवे फॉर द क्रूड टच. ओके, तो समटाइम इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये डोर्सल कॉलम की बात कर रहे हैं या एंटेरोलेटरल. तो फॉर एग्जांपल दिस इज आई विल ट्राई माय easiest way to teach the representation of the fibers in the spinal cord for the both the system. For example, this is the midline. Okay, और ये एक फाइबर है, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं. This is for the cervical, this is for the thoracic, this is for the lumbar and this is for the sacral. Okay, मान लो कि एक ये ऐसा फाइबर है कि जो क्रॉस होता है So look at this. This is the cervical, thoracic, lumbar and sacral.
So these are the cervical, thoracic, lumbar and sacral fiber. They are not crossing the spinal cord. Okay. So this is for the dorsal column medial lemniscal system. Okay. So dorsal column के sacral is the most medially and the cervical is the most laterally. Okay. अब दूसरे डायग्राम में हम करेंगे about the representation of the fibers of the anterolateral system. For example, ये हमारा हो गया मिड लाइन, एक फाइबर यहाँ से, बिकॉज एंटेरोलेटरल सिस्टम के फाइबर जो है वो क्रॉस हो जाएंगे and runs upward. This is again cervical, thoracic, lumbar and sacral. Okay. Now look at this. तो ये दूसरी इमेज है कि जिसमें फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस हो जाते हैं. तो दैट इज अबाउट द एंटेरोलेटरल सिस्टम, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल. वो उसी स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस हो जाएंगे. क्रॉस हो गए फिर अपवर्ड मूवमेंट करेंगे टूवर्ड द ब्रेन्स. ओके. तो दिस इज द सर्वाइकल, दिस इज thoracic, lumbar and sacral. So look at this. Cervical fiber is most medially in case of the anterolateral system and the cervical fiber is most laterally in case of the dorsal column medial lemniscal system. Okay. So in this way you can remember the representation of the fibers in the columns of the spinal cord. So this is for the dorsal column medial lemniscal system and this is for the, this is the complete diagram from the both the systems showing the two tracks. Now coming to the last part, that is the terminations. So ultimately origin होंगे, all the fibers is from the receptors, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में रन करेंगे, फिर ब्रेन में रन करेंगे. अल्टीमेटली all these fibers get terminated in the respective part of the sensory cortex. Okay. So that we will discuss in the next few slides and this is the last part of this lectures. Now look at this. This is the anterior and this is the posterior part. Okay. This is the central sulcus. This is the central sulcus. Okay. ये central sulcus है, इस तरफ का posterior part है, तो it is the post central gyrus and this is the pre central gyrus. Okay. Pre central gyrus is always motor. These all are the motor areas and in the post central gyrus is a sensory area. Okay. तो ये जो post central gyrus का जो part है, that is a sensory cortex and the pre central gyrus is a motor cortex. Okay. Now legs के जो भी fiber होंगे, they terminated on the top of the gyrus. Okay. और face वगैरह के जो fibers आएंगे, they terminated on the bottom of the post central gyrus. Okay. So this is the representation. Okay. And this is on the opposite cortex because the fiber are crossed, one at the level of the medulla, second at the level of the spinal cord. Okay. There are the three important areas for the sensory cortex: primary, secondary and association. Primary Brodmann number is 312. For the association Brodmann number 5 and 7. प्राइमरी को बोलेंगे S1, सेकेंडरी को बोलेंगे S2. इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है. And now coming to the function of the ascending tract और function of the sensory cortex. तो जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, दिस इज द हाईएस्ट एरिया फॉर द जनरल कॉन्शियस सेंस ऑफ द परसेप्शन, दैट इज टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशंस. ओके. तो टच तो आपको मालूम हो जाएगा एट द लेवल ऑफ द थैलेमस. जैसे ही आपका इम्पल्स थैलेमस में पहुंचेगा तो आपको मतलब एक टच हो रहा है वो तो आपको वहीं पे मालूम हो जाएगा, बट एग्जैक्टली कौन सी जगह पे टच हुआ है, ओके, कितने डिस्टेंस में आप दो पॉइंट अलग अलग फील कर सकते हो, ओके, तो ये सारा उसका फर्दर रिफाइनमेंट होगा आपको इन द वंस द
इम्पल्स रीचेस टू द प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये उसका काम है। तो मतलब आपको क्रूड सेंसेशन तो आ जाएंगे इन द थैलेमस, उसका फर्दर रिफाइनमेंट और उसका फर्दर डिटेलिंग जो करना है वो आपको पता चलेगा फ्रॉम द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, that is for the perception of the sensation. It also helps in along with the primary sensory cortex. And sensory association area जो है that is for the center for the combined sensation, that is for the synthetic sense। जो हमारा जो सेंस था ना स्टीरियोग्नोसिस, रिकॉग्निशन ऑफ द फेमिलियर ऑब्जेक्ट विथ क्लोज आई, ओके, वो हमको कैसे पता चलेगा? Once that information reach to the sensory association area number 5 and 7, okay, and this area number 5 and 7, it is the center for the this sense for the stereognosis, okay, so that you do remember. So these all are the function of the sensory cortex. And stereognosis is also called the synthetic sense because it's a combination of the more than one sense. Touch भी आएगा, pressure भी आएगा, etc. So this is all about the today's session. Now one more important thing, in एंटेरोलेटरल सिस्टम में हमारे पास दो ट्रैक थे, लेटरल स्पाइनोथेल्मिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई वी यूज द टर्म स्पाइनोथेल्मिक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से हम स्टार्ट किया तो वो तो टर्मिनेट तो हो रहा है इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो स्पाइनोकॉर्टिकल होना चाहिए ना, बट एक्चुअल टर्म इज अ स्पाइनोथेल्मिक इन द बुक्स और इन द और लिटरेचर। तो वाई इट इज देयर? द रीज़न इज वेरी इंटरेस्टिंग, द रीज़न इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है कि जैसे ये एंटेरोलेटरल सिस्टम के जो फाइबर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे, फिर वो उसी सेगमेंट में क्रॉस हो जाएंगे, फिर ऑपोजिट एंटीरियर एंड लेटरल कॉलम में एसेंड करेंगे, फिर वो मेडुला को पास करते हुए फिर ब्रेन में थैलेमस में फिर टर्मिनेट होंगे ऑपोजिट थैलेमस में। ठीक है, सो जैसे वो थैलेमस में पहुंचेंगे तो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फाइबर्स ऑफ द एंटेरोलेटरल सिस्टम are terminated at the level of the thalamus, at the level of the thalamus, and only 20% fiber will reach to the respective part of the sensory cortex. Okay, तो major termination तो thalamus में ही हो गया for the anterolateral system, and that's why उसमें जो फर्दर दो हमने ट्रैक किए उसका नाम रखा है स्पाइनोथेल्मिक इंस्टेड ऑफ द स्पाइनोकॉर्टिकल। सो दिस इज द रीजन why it is called the spinothalamic and not the spinocortical, because most of the fibers, 80% fibers are get terminated within the thalamus only, and only 20% or only few fibers reach to the cortex. Okay, तो जो मेजर होगा उसी का नाम लेंगे, तो that's why it is a spinothalamic and not the spinocortical. Okay, तो ये एक important quiz like वाइवा का क्वेश्चन था that we have discussed. Okay, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन। तो आज हमने किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एसेंडिंग ट्रैक, उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट सिस्टम की, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम एंड द सेकंड इज अ एंटेरोलेटरल सिस्टम, बोथ आर द इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद हमने किया अबाउट द सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन पुट ऑलवेज इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये तो वही है, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। वो जो मैंने स्कीमेटिक आपको डायग्राम बताया था उस हिसाब से आपको याद रखना है। फॉर द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम द सैक्रल इज द मोस्ट मीडियली, एंड फॉर द एंटेरोलेटरल सिस्टम सर्वाइकल इज द मोस्ट मीडियली। ओके, ये ऐसा दोनों में अलग अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ द वन इज अ क्रॉस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वन इज नॉट क्रॉस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, वन मोर important thing, cerebral cortex control the function of the opposite half of the body, but in case of the cerebellum is a same side. Okay, तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है in the to understand the neurology thoroughly. So this is all about the today's session. Thank you for listening and thank you for watching.